Hi children, how are you all beta? All are safe and sound? Good. Take care of yourself children, okay? And try to spend little time in your studies honestly. Alright? Good. Students, welcome to our civics class. In the previous chapter, you heard about the fourth general election which had taken place in 1967, which resulted as a challenge to Congress. And that challenge was not only from the opposition but more and more. The Congress had the challenge to face from among its members. If you remember, we have read about it, where syndicate was formed. It was the members within the Congress. This group was from the members within the Congress. So it resulted into split in Congress. Congress faced many problems, many challenges from non-Congress party. But children, in spite of all the hurdles, in the fifth general election, the result was surprising, amazing. Indira Gandhi was able to prove herself as a statesman, not only at the center, but even in the state assemblies. Time passed. Again, children, the spaces for democratic expression of people aspiration started to shrink. And then that led to political crisis. With this, we'll start our today's chapter, the crisis of democratic order. Democratic order. So children, आपने पीछे चैप्टर में चौथे आम चुनाव के बारे में सुना जो 1967 में कराया गया था। उस चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए लाभप्रद नहीं रहे। कांग्रेस ने जितने कम वोट पाए उसके पहले वह इतना कम वोट कभी भी नहीं उसको मिला। ये सही है कि चौथा आम चुनाव जो था वह कांग्रेस ने बिना पंडित नेहरू के लड़ा था, लेकिन ये भी सही है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन वह उसके लिए संतोषप्रद नहीं रही। समय बीतता गया, कांग्रेस को न केवल विपक्षी दल बल्कि जो उनके अपने कांग्रेस के सदस्य थे जिन्होंने एक दल बना लिया था, कांग्रेस में ही वह दल सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में आपने पीछे चैप्टर में सुना है। कांग्रेस को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। उसके बाद पुनः पांचवा आम चुनाव हुआ और उस आम चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की, जिसमें कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में विपक्षियों ने भी स्वीकार किया। समय बीतता गया, जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ चूक हो जा रही थी। हो सकता है परिस्थितियां ऐसी थी कि सारी आवश्यकताएं, जनता की सारी आकांक्षाएं पूरी ना हो सकी।
कहा जाता है ये भी कि जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ रही थी। जो जनता चाहती थी परिस्थितियों के अनुसार उसे पूरा किया जा सकना शायद बहुत मुश्किल था। परिणाम क्या हुआ? राजनीतिक संकट आया। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आपका टॉपिक है लोकतांत्रिक संकट के बारे में। किस प्रकार से लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती का समय आ गया। With this we start this topic, the crisis of democratic order. लोकतांत्रिक संकट की घड़ी थी। So in this we'll be dealing with points. The first point is background to emergency. For this, the first point is background to emergency. इस चैप्टर का पहला पॉइंट है बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, आपातकाल की पृष्ठभूमि। जैसा कि आपने सुना कि जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ने लगी, अर्थात कहीं ना कहीं आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी भारत में। So it is said, children, that as I told you just in the introduction, that political situation in the 4th and 5th general election, just now you heard in the previous chapter also you heard, it was a political challenge. The 4th general election was a political challenge to the government, as well as the 5th general election after gaining majority at the center and in the state assemblies. Still, it was a challenge for the government. Of course, Indira Gandhi was proved as a statesman, but children, the situation was changing. And at that time, it is said that competition between the parties were too bitter. जो प्रतिपक्षी दल थे, जो प्रतिस्पर्धा थी, वह बड़ी ही तीखी और ध्रुवीकृत हो चुकी थी। जैसा कि आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा है दलगत राजनीति के बारे में, किस प्रकार से दल बदल की प्रक्रिया हो रही थी, जिससे सरकार यदि पूर्ण बहुमत में नहीं थी तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। And not only this, there was tension between the government and judiciary. इतना ही नहीं, सरकार को और न्यायपालिका दोनों के बीच भी संघर्ष था। सुप्रीम कोर्ट said that government is taking the steps, whatever plans are implemented, the ways they are implemented, it is against the constitution. न्यायपालिका का कहना था कि सरकार जिस प्रकार की नीति अपना रही है, जैसे उसको लागू किया जा रहा है, वह संविधान के विरुद्ध है। वहीं गवर्नमेंट का कहना था that judiciary was functioning in the way that it was against to the principle of democracy. Judiciary has become a conservative institution and it is like a hurdle in implementing the pro-poor welfare programs. सरकार का कहना था कि न्यायपालिका भी बड़ी ही संकीर्ण विचारधाराओं की हो गई है, जनहित का समर्थन नहीं कर रही है, ना ही गरीबी के उन्मूलन के लिए जो सरकार कदम उठा रही है उसमें अपना समर्थन दे रही है, बल्कि उसके लिए रोड़े का काम कर रही है, रुकावट या बाधा का काम कर रही है। इतना ही नहीं बच्चों, not only this, the opposition, they also said that the Congress has become too personal. The government authorities is totally converted into personal authority. कांग्रेस हर कदम व्यक्तिगत रूप में उठा रही। जो सरकारी नीतियां हैं, जो जनहित में होना चाहिए, जिस पर केवल कॉन्स्टिट्यूशन का निर्देश के अनुसार काम करना चाहिए, वहां भी कहीं न कहीं कांग्रेस अपने व्यक्तिगत प्रयास करके उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है।
इसके साथ ही साथ द स्पिरिट इन द कांग्रेस ऑल्सो शार्पेंड द डिवीजन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड द ऑपोजिशन। इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस का विभाजन हुआ वह भी इसी समय इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, जैसे मैंने आपको बताया, न केवल विपक्ष बल्कि जो उनके अपने कांग्रेस के सदस्य थे उनसे भी कांग्रेस को बहुत बड़ी चुनौती थी। अब इस चुनौती में क्या परिणाम हुए, क्या परिस्थितियां थी बच्चों की उस समय, तुरंत जनता की आकांक्षाएं जो थी उस पर सरकार खरी नहीं उतर सकी, इस बारे में अब हम पॉइंट 2 में सुनेंगे। द पॉइंट 2 इज इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। अब हमारा दूसरा पॉइंट है आर्थिक संदर्भ में। Children, as you know that election of 1971 which was held, at that time the slogan of Congress was गरीबी हटाओ। आपने सुना 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस का स्लोगन था गरीबी हटाओ, जिससे उसे मत के काफी लाभ प्राप्त हुए थे, उसे अच्छे मत मिले, क्योंकि उसी समय जो विपक्ष था उसका केवल एक सोच थी, एक पॉलिसी थी, इंदिरा हटाओ। और इसी स्लोगन गरीबी हटाओ के स्लोगन को लेकर कांग्रेस ने लोगों के बीच अपने विचारों को प्रकट किया। लोगों के बीच जाकर कांग्रेस के सदस्यों ने अपने बातों को कहा, अपनी नीति को समझाया, जिससे 1971 के इलेक्शन में, चुनाव में कांग्रेस को लाभ हुआ। बट इट वॉज सेड दैट नो सच इम्प्रूवमेंट वॉज सीन इन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। कहा जाता है, स्लोगन दिया गया, लेकिन सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में कोई खास बदलाव नहीं आया। ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, many ill situations were occurring in our country। सही है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय देश की परिस्थितियां भी सरकार का साथ नहीं दे रही थी, जिसके बारे में आप अलग अलग पॉइंट में आप सुनेंगे। Of course, the ill situation of the country which was occurring in our country was also little responsible that the government failed to satisfy the people's demand, which we will hear in different points. The first point is about the 1971 to 1972. You have read in the previous chapters about Bangladesh crisis. आपने 1971 से 72 के बीच बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में आपने टॉपिक पढ़ा है। And in that you heard that 80 million people, they crossed over East Pakistan and they had come to India। उसी समय करीब 80 लाख की जनता भारत में आई, भारत में उसने शरण लिया। पहले से ही भारत की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, अब इतने 80 लाख जनता को शरण देने के बाद भारत की आर्थिक व्यवस्था और भी चरमरा गई। And that was followed by Indo-Pak war। और उसी के बाद भारत पाक युद्ध हुआ। भारत पाक युद्ध हुआ, आपने इसके बारे में पीछे पढ़ा है कि किस प्रकार से भारत को आर्थिक नुकसान हुआ। ये सही है, पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ, लेकिन भारत जो कि पहले से ही आर्थिक व्यवस्था का संकट देख रहा था, इस युद्ध के बाद भारत की आर्थिक व्यवस्था और भी कमजोर हो गई। And over and all, not only this, after the war, what did US do? It stopped giving aid to India। इतना ही नहीं, युद्ध के बाद यूएस ने भारत को सहायता देना बंद कर दिया। Now children, another topic, another point had come with this, because the aid was stopped which was given to India. What happened? In international market oil prices increased। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई। तेल की कीमतें बढ़ गई। What happened? The things which were coming from other places, from one place to other place, when they were paying a higher rate, raised rate for the oil, of course that will be taken from the price, the things which they were sending, the things which were sold। तेल की कीमतें बढ़ी, असर क्या हुआ? दैनिक आवश्यकताओं की चीजों की, वस्तुओं की कीमत बढ़ गई। नुकसान किसे हुआ? भारतीय जनता।
Are you getting? So what happened, children, with this? When the daily commodities, when the price raised, it is said that 23% was raised in 1973, and then it was raised up to 30% in 1974. इन वस्तुओं की कीमत 1973 में 23% बढ़ी और वहीं एक वर्ष के भीतर 1974 में 30% बढ़ गई, 30% बढ़ गई। आप समझ सकती हैं कि भारतीय जनता की उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, किस कठिनाई से भारतीय जनता ने उस बढ़ी हुई कीमत से वस्तुओं की खरीदारी की होगी, अपनी दैनिक आवश्यकताओं के वस्तुओं की खरीदारी कैसे की होगी। So government has to see to some solution. So what did government do? It thought that I should see to do something. There should be some sources given to the people to earn their living. But at the same time, the industrial growth of India was also low, which resulted into unemployment in rural area. सरकार यदि कुछ करना भी चाहे तो उसके पास धन नहीं था, क्योंकि उसी समय जो औद्योगिक स्थापना की जानी थी, कारखानों की स्थापना की जानी थी, उसके लिए भी भारत के पास पैसा नहीं था, सरकार के पास पैसा नहीं था। परिणाम क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। पहले से ही ग्रामीण जनता त्रस्त थी, बेरोजगारी बढ़ गई और परेशानी। हाउ कैन दे बाय द थिंग्स? सो द गवर्नमेंट, what did it do to solve this problem? It started freezing the salary of the government workers. That also resulted into dissatisfaction. आखिर आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो? सरकार किस प्रकार से धन प्राप्त करे कि वह आवश्यकताएं जो जनता की है, खास करके गरीब जनता की, उसकी पूर्ति कैसे करे? तो उसने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी। अब और भी स्थिति बिगड़ गई। तो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने भी सरकार का विरोध करना आरंभ कर दिया। एंड ओवर एंड ऑल चिल्ड्रन, द मॉनसून फेल्ड इन 1972 to 73। इसके साथ ही साथ मॉनसून भी नहीं आया, बारिश नहीं हुई 1972-73 के बीच। परिणाम क्या हुआ? अकाल पड़ा, अनाज उत्पन्न नहीं हुआ, एंड दैट इफेक्टेड द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन। Because you know India is an agricultural country. Monsoon failed, miss. It will affect the quantity of crops, production of crops, and that will affect the life of each of the people staying in the country. So children, there were many reasons, there were circumstances occurring in our country which were not at all supporting the government to get rid of the problems or of the challenges. And over and all, as you heard the points, there was dissatisfaction in the country. ऐसी परिस्थितियां थीं जिसका सुलझाना सरकार के लिए आसान नहीं था, क्योंकि सभी तरफ हर वर्ग पूर्ण रूप से सरकार से असंतुष्ट था। लेकिन of course the non-Congress parties, the opposition, they had taken the advantage as the people were protesting against the government. So these opposition, the non-Congress party members, they started supporting the protest which was done against the government. And already you heard in 1960s that there was unrest in the students. आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि 1960 में छात्रों में भी सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भावना थी। इसके बारे में आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा है। So what happened? That time there was a Marxist group, एक मार्क्सवादी दल था, that did not believe in parliamentary politics. संसदीय शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं करता था, और ऐसे समय में उसने क्या किया? अपनी गतिविधियों को और भी तेजी से बढ़ाया, और भी गतिशील हो गया। ये मार्क्सवादी दल ऐसी परिस्थितियों में और भी गतिशील हो गया। And then what happened? Again it was a big, a strange challenge for the government. ये सरकार के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चुनौती उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गई, और जिसका प्रभाव जनता पर भी देखा जा रहा था।
So that group was, at present this group is known as मार्क्सिस्ट और नक्सलाइट्स. आज उसे मार्क्सवादी या नक्सलवादी के नाम से हम जानते हैं, जो खास करके वेस्ट बंगाल में अधिक सक्रिय था. दिस ग्रुप was mainly too strong, activating too strong, especially in Bengal. Of course, the steps were taken by the government to suppress these people, but what was the result? How far the government succeed, you will be hearing in the coming points. Okay, children. Thank you, class. Have a nice day.